Good morning, my dear student. Today we are going to start class 11th history, chapter 6, third order. We will continue this chapter because if you remember and if you watch my previous video, then you will find there that the various topic was explained by me. We have discussed already about the mineral state and knights. Today we are going to read the church and society. The topic explain what is the understanding, what is the mutual bonding with society and church. In this topic, it is clearly explained by author that church how can play role in the 9th to 16th centuries European society. The church and society. Though Europeans became Christians, they still held on to some of their old belief in magic and folk tradition. Christmas and Easter become important dates for the 4th century. Christ's birth celebrated on 25 December replaced an old pre-Roman festival, the date of which was calculated by the solar calendar. Easter marked the, the crucifixion of Christ and the rising from the dead. But it was not a fixed one because it was replaced an older festival to celebrate the coming of spring after a long winter, dated by the lunar calendar. In this paragraph, author clearly explained that probably अधिकतर यूरोपियंस ईसाई बन चुके थे. उन्होंने अभी भी कुछ हद तक जो मिरेकल्स रिचुअल कस्टम्स प्रैक्टिसेस थी, जो पुराने ट्रेडिशंस फेथ और बिलीव्स थे, उनको उन लोगों ने जारी रखा. 4th सेंचुरी में क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण डेट बन गए थे. 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला जीसस का बर्थडे एक पुराने रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया. इस तिथि की गणना काउंटिंग चूंकि सोलर कैलेंडर के बेस पे होती थी. ईस्टर जो फेस्टिवल था वो जीसस के क्रूसिफिकेशंस और उनको आफ्टर द डेथ फिर जो उनका पुनर्जन्म होता है या पुनर्जीवित होने का प्रतीक माना जाता था. ईस्टर का त्यौहार ईसा मसीह को क्रूसीफाई करना और फिर उनको फिर दोबारा जीवित हो जाने के याद में मनाया जाता था. ये उसका प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि कोई फिक्स नहीं थी. इसमें चंद्र पंचांग जो लूनर कैलेंडर थी, क्योंकि ईस्टर जो था वो लूनर कैलेंडर पे आधारित था, प्राचीन त्यौहार का स्थान लिया था जो लंबी सदी तक जो लूनर कैलेंडर पे ईस्टर जो फेस्टिवल था वो पुराने समय से आने वाले फेस्टिवल का को रिप्लेस करके आया था. क्योंकि वो फेस्टिवल जो ओल्ड था वो लूनर कैलेंडर पे बेस्ड था. एंड we have discussed already the Islamic calendar also based on the lunar calendar, so that's why their festival was not fixed, or their festival is not fixed. It's move on आगे बढ़ता रहता है, उसमें गति होती रहती है. Just like that Easter festival also based on lunar calendar, so that's why the date of Easter is not fixed. आगे ये बढ़ती रहती है. ये जो त्यौहार है ईस्टर, ये प्राचीन त्यौहार का स्थान लिया था जो एक लंबी सर्दी के पश्चात एक लंबा टाइम जब पीपुल ऑफ ईच विलेज टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर ए लॉन्ग विंटर, एक लंबे स्प्रिंग आने के बाद जब एक लंबा स्प्रिंग, इट मीन्स बसंत का महीना, ये आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था. जस्ट लाइक दैट इन इंडिया we celebrate the Basant Panchami in the celebration of the Basant.
Similarly, in the Christianity, we have seen the Easter they celebrated. Traditionally, उस दिन गांव का हर एक व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे, घूमते थे. People of each village used to make a tour of their village lands. With the coming of Christianity, they continued to do this, but they called the village, the parish, the area under the supervision of one priest. Overworked peasants welcome holidays because they were not expected to work then. These days were meant for prayer, but people usually spent a good part of them having fun and fasting. On that day, on the festival day, it was the very entertained day for the common people, for the peoples, for the workers. Why? Because जो ये गांव के लोग थे, ये लोग उस दिन छुट्टियां मनाते थे. गांव में दूर दूर तक क्षेत्रों का ये लोग घूमते थे, और ईसाई धर्म के आने पर भी इन्होंने इस व्यवस्था को, इस परंपरा को जारी रखा. वो पेरिस की यात्रा करते थे. पेरिस मतलब एक पादरी की देखरेख में रहने वाला क्षेत्र. काम से दबे कृषक, पीजेंट्स इन छुट्टियों का आनंद, इन छुट्टियों के दिन, हॉलिडे या हॉलीडेज का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था. वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय एंटरटेनमेंट में गुजारते थे, खूब मौज मस्ती करते थे. आई मीन टू से दैट ऑन दैट डे दे एंजॉयड अ लॉट. दे वेटिंग फॉर द फेस्टिवल दैट व्हेन this festival will come and we will enjoy, because on that day, a holiday, church or the noble or knights, they cannot impose them the extra work. So this was the great occasion for them, for the Christian common people. The pilgrimage was the important part of the Christian's life, and many people went a long journey to shrines of martyrs to be big church. तीर्थ यात्रा, pilgrimage was an important part of Christian's life. एक ये तीर्थ यात्रा क्रिश्चियन की लाइफ में एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता था. एंड मेनी पीपल वेंट ऑन लॉन्ग जर्नीज टू श्राइन्स ऑफ मार्टियर्स और बिग चर्चेस. लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे अपने शहीदों की समाधियों के लिए. बड़े बड़े जो कैथेड्रल्स थे, जो चर्च थे, उनकी यात्रा करते थे. Here in this paragraph, author want to inform you that the bonding, that the relation between the peasants and not only peasants, that the common people between church and their work, their practices, their act, what they did on that day when they celebrate Easter, when they celebrate the 25th December, the birth of Jesus, and such type of other festivals. No doubt to say that that festival was replaced the Roman festivals. ये सब त्योहार रोमन फेस्टिवल को रिप्लेस करके स्थापित हुए थे, और इन्हीं से क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन हुआ, और फिर एक नई व्यवस्था, एक नई परंपरा क्रिश्चियनिटी में हमें दिखाई देती है. इस दिन कॉमन पीपल लंबी यात्राएं करते थे जर्नी पे, और फिर बड़े बड़े चर्चों की यात्रा करते थे. इन चीज़ों को देखते हुए वो चर्च से कनेक्टेड रहते थे. इवन आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू दैट चर्च इम्पोज टाइथ, दैट इज द टेक्स्ट, दैट इज द रिलीजियस टेक्स्ट. इट वॉज गिवन बाय द थर्ड ऑर्डर, एंड टाइल ऑल्सो वॉज इम्पोज बाय सेकेंड ऑर्डर. वी हैव रीड हियर अ पोएम्स, एक कहानी, एक गाना दिया गया, एक सॉन्ग दिया गया, एक कविता बनाई गई है जो चर्च में गाई जाती थी, या लोग जब घूमते थे तो उस समय इनके लिए थी. जेफ्री चासर, द कैंटरबरी टेल्स, जो ये काव्य है,
This was written in the Middle English and Versailles is translation in the modern English. अंग्रेजी में मध्यकालीन इसकी जो मूल रचना थी वो मिडिल एरा की इंग्लिश में की गई थी, और इसका अगर आप ट्रांसलेट करें हिंदी में तो कुछ ऐसे होगा कि आप यू कैन रीड दिस पोएम and try to understand the feeling of the common people. Okay, the next topic, the third order. This is very interesting topic. We have read the first order and second order. We are going to start the third order. Peasants free and unfree. Let us now turn to vast majority of the people, namely those who sustained the first two order. Cultivators were of two kinds, free peasants and serf. From the verb to serve, it means let us now turn to the vast majority of the people. आइए एक बड़े वर्ग पे ध्यान देते हैं. I have already informed you that the peasantry class, that the third order, it was very vast in society. The various people, the member of the third order, I was counted in my previous video, like peasants, like workers, artisans, lawyers, even women also. They were part of third order, and so many others. They become the part of third order. So that's why the vast majority of the people belongs to third order. Those who sustain the first two orders, cultivators were of two kinds. There are two types of cultivators. There are two types of peasants. First, the free peasants, and second, serfs. Serf, it means the slaves. They were not free. The free peasants held their farm as tenants of the lord. The man had to render military service at least 40 days every year. Peasants' family had to set aside certain days of the week, usually there, but often more when they would go to the lord's estates and work there. The output from the such labor, called labor rent, would go directly to the lord. In addition, they could be required to do other unpaid labor services like digging ditches, gathering firewood, building fence, and repairing road and buildings. Third order. Third order, as you know that it is very vast. थर्ड ऑर्डर में जो पीजेंट्स थे वो अपने लाड के और अपनी खुद की ज़मीन पे खेती करते थे. जो मेल थे वो अपनी सर्विसेज मिलिट्री के भी रूप में देते थे, आर्मी के भी रूप में देते थे जरूरत पड़ने पे. पीजेंट्स अपनी सर्विसेज आर्मी के रूप में भी देते थे, एज वेल एज दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज द डेली वेजेस वर्कर फॉर देयर लॉर्ड्स. पुरुषों को अपनी सर्विसेज देना ही देना होता था अपने लॉर्ड के लिए. एक साल में कम से कम 40 डेज उन्हें अपने लॉर्ड के लिए काम करना पड़ता था. उन्हें लॉर्ड की जागीरों पे जाके, उनके स्टेट पे जाके काम करना ही पड़ता था. इस काम करने के लिए वीक में 3 डेज सेट थे. मे बी पॉसिबल, कभी कुछ ज़्यादा दिन भी उनको काम करने पड़ते थे, कुछ ज़्यादा दिन भी उनको काम करने के लिए लॉर्ड की ज़मीन पे जाना पड़ता था. और जो ये सिस्टम थी ये चलती रहती थी. इस लेबर, इस वर्क से होने वाला जो प्रोडक्शंस था, जिसे लेबर रेंट कहते थे, श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था. इट मीन्स जो काम पीजेंट्स करते थे फ्री ऑफ कास्ट मैनेरियल स्टेट्स या अपने लॉर्ड के लिए, वो फ्री ऑफ कास्ट था.
और उसकी जो इनकम होती थी वो सीधा लॉर्ड के पास पहुंचती थी। और इसके अतिरिक्त एक्सेप्ट इट मीन्स they have to give the other works also, like digging, like repairing roads, like building fences and such type of others. Beside helping in the field में काम करने के अलावा ये सारे काम भी करने पड़ते थे। Women and children had to other task. Women और children के लिए भी वर्क फिक्स थे। It means it is clear cut instructions for the male, female and children. Everyone have to pay their labor for their lords. The male work is different, women work is different and children work is different. क्या करती थी मैं? What they did? Women's, they spun, thread, wove, cloth, made candle and pressed grass to prepare wine for the lord's use. There was one direct text called tile that king sometimes imposed on peasants. The clergy and noble were exempted from paying this. Women's अपने लॉर्ड के लिए कई सारे काम करती थी, लाइक वे सूत काटने का काम, कपड़ा बुनने का काम, कैंडल बनाने का काम और लाड़ के यूज के लिए अंगूर के रस को निकालकर वाइन बनाने का काम करती थी, वाइन प्रेस। इट मीन्स द स्पून, थ्रीड, वूव, ग्लास मेड, कैंडल एंड प्रेस ग्लास टू प्रिपेयर वाइन फॉर द लॉर्ड्स यूज। देयर वाज वन डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल। इसके साथ ही एक डायरेक्ट टैक्स टाइल थी जिसे लॉर्ड पीजेंट्स पे कभी कभी लगाते थे। पीजेंट्स, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू, पीजेंट्स हैड टू पे टू टाइप्स ऑफ टैक्स, टाइज एंड टाइल। टाइज उसे चर्च को देना पड़ता था और टाइल उन्हें लॉर्ड को देना पड़ता था। Serfs cultivated plots of land, but this belongs to the lord. Much of the produce from this had to be given to the lord. They also had to work on the land which belonged exclusively to the lord. They received no wages and could not leave the state without the lord's permission. The lord claimed number of monopolies at the expenses of his serf. Serf, that is the very critical condition for the serf. Why? Serf, as you know that he was not free. He had to force to provide their service in the land of their lord's farms. Much of the produce from his had to be given to the lord. Serfs जो थे वो अपने खर्च के लिए वो विच लैंड पार्ट दे यूज्ड, दैट लैंड वाज कंट्रोल इन देयर लॉर्ड्स. ही वाज नॉट मास्टर ऑफ देयर लैंड, ही वाज नॉट मास्टर ऑफ दैट लैंड ऑन विच दे डिड वर्क. पूरी तरीके से वो जमीन उनके लॉर्ड की थी. वे उन छोटे छोटे लैंड पार्ट पे खेती करते थे जो केवल लॉर्ड के ही ओनरशिप में थी. इसके लिए उन्हें कोई भी डेली वेजेस नहीं मिलती थी, मजदूरी नहीं मिलती थी. वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जो स्टेट था, एरिया थी, वो उसको छोड़ नहीं सकते थे. दे कुड नॉट लीव द स्टेट विदाउट द लॉर्ड्स परमिशन. द लॉर्ड क्लेम्ड नंबर ऑफ मोनोपोलीज. लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार, मोनोपोलीज की बात करते हैं, दावा करते हैं. हालांकि इससे जो सर्व्स थे उनको काफ़ी हानि हो सकती थी. सिर्फ केवल अपने लॉर्ड की जो क्या थी, कह रहे हैं कि द ग्रेन देयर फ्लोर. सर्व्स कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मिल टू ग्रेन देयर फ्लोर. सर्व केवल अपने लॉर्ड की मिल में क्या कर सकते थे, आटा ही पिसा सकते थे, मतलब आटे को तैयार कर सकते थे.
उसके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क मतलब उनके शराब वाइन फैक्ट्री में ही काम कर सकते थे. द लॉर्ड claimed a number of monopolies. Serfs could use only their lord's milk, grind their flour, his oven to bake their bread, and his wine press to distill wine and beer. उनके वाइन प्रेस में शराब बना सकते थे, उनके ओवन में अपनी रोटियां सेक सकते थे और उनके मिल में अपने आटे पिसा सकते थे. ये काम सर्व कर सकते थे. द लॉर्ड कुड डिसाइडेड हु मे सर्व शुड मैरी और माइट गिव हिज ब्लेसिंग टू द सर्व चॉइस बट ऑन पेमेंट ऑफ फी. लॉर्ड यह तय कर सकता था कि जो सर्व्स हैं वो किनके साथ शादी करेंगे और किसके साथ उनको विवाह करना चाहिए. द लॉर्ड कुड डिसाइड हु मे सर्व शुड मैरी और माइट गिव हिज ब्लेसिंग टू द सर्व चॉइस. सर्व की चॉइस पे और सर्व कैसे शादी करेगा, इन दोनों चीज़ों को डिसाइड करने का काम लॉर्ड का होता है. बट ऑन पेमेंट ऑफ फी, लेकिन इसके लिए लॉर्ड कुछ पैसे देता था. इट मीन्स इन दिस पैराग्राफ we can easily understand the condition of serf is very worse during 9th to 16th century in this system, because serf was not free. He was totally dependent on their lord's desires. What their lords want, he had to do particular that work. He provide their services in their land. He provided unpaid work in their farming land and such type of all things. Even he was not free. किसके लिए? शादी करने के लिए भी. His blessing to serve choice. The Lord could decide a serf should marry or might give his blessing to the serf choice. शादी के लिए भी लॉर्ड के ऊपर सबको डिपेंड होना पड़ता था. तो माय डियर स्टूडेंट, एज आई टोल्ड यू कि किस तरीके से 9 to 16 सेंचुरी में मैनुअल स्टेट में पीजेंट्स रहते थे और किस तरीके से मैनुअल स्टेट की जो एक फार्मिंग होती थी वो होती थी. मैंने आपसे कहा कि सर्फ कल्टिवेटेड प्लॉट ऑफ लैंड but these belong to the Lord. Much of the produce from this had to be given to the Lord. जो सर्व्स थे, जो एग्रीकल्चर स्लेव्स थे, वो सब मैनुअल स्टेट के दास पे मतलब अपने नोबल के जो लैंड थे उस पर वो काम करते थे. मच ऑफ द प्रोड्यूस from this had to given to the Lord. They also had to work on the land which belonged exclusively to the Lord. They received They also had to work on the land which belonged exclusively to the Lord. They received no wages and could not leave the state without the Lord permission. सर्फ की कंडीशन सबसे ख़राब थी समाज में. उन्हें बिना लॉर्ड के परमिशन के कहीं वो जा आ नहीं सकते थे. उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती थी. उन्हें लॉर्ड की ज़मीन पे काम करने के बदले कोई पैसा नहीं मिलता था. अतः उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी. दे ऑल्सो हैड टू वर्क ऑन द लैंड विच बिलोंग्ड एक्सक्लूसिवली टू द लॉर्ड. कह रहे कि वो जगह, वो ज़मीन जिस पे वो खेती करते थे वो नोबेल की थी. उस पर उत्पादित होने वाली हर वस्तु पे अधिकार नोबेल्स का ही होता था. और इस तरह सब कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मिल टू ग्राइंड देयर फ्लोर. और अपने जीवन के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो लॉर्ड की ज़मीन पे ही निर्भर थे, उनकी मिलों पे ही निर्भर थे. उनके पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्स और मशीन्स और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी. इसलिए उनकी पूरी लाइफ लॉर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड होती थी. इस तरह उनकी स्थिति जो
यूरोपियन सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी जो उसमें काफ़ी अच्छी नहीं थी। हम आगे पढ़ेंगे जब, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर 101 डेज वो अपने को, ही हाइड हिमसेल्फ एटलीस्ट 101 डेज, ही ट्रीटेड हिज एज ए फ्री मैन। तो फोर्थ ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट आया वो निश्चित रूप से सर्फ की कंडीशन को दयनीय जब बनती गई, तो ऐसे कंडीशन में सर्फ भाग के शहरों में छुप जाया करते थे, और वो लोग 101 डेज अपने को हाइड करके छुपा के रखते थे अपने लॉर्ड से, और फिर फ्री होकर के वो नगर में रहते थे, फिर उनके ऊपर कोई बंदिशें नहीं थी। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंग्लैंड। गुड बाय एंड टेक केयर।